बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने शनिवार को असम के शिवसागर में ग्लोबल 6 द्वारा आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन और अन्य जरूरी सामान वितरित किया। रणदीप हुड्डा ने शिवसागर में गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और बाढ़ प्रभावित असम के लोगों को भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एनजीओ के साथ राहत कार्य में भी भाग लिया। लंगर सेवा के दौरान रणदीप हुड्डा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि शिवसागर रेलवे स्टेशन पर आसपास के इलाकों से प्रभावित परिवार पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों से हर दिन भोजन तैयार कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से ग्लोबल 6 के साथ जुड़े हैं। रणदीप हुड्डा ने लोगों से अपील की कि वे सीधे राहत कार्यों में भाग लेकर प्रार्थना करके या राहत संगठनों को आर्थिक सहायता देकर जरूरतमंदों की मदद करें। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक बाढ़ के कारण 82 लोगों की मौत हो चुकी है। रणदीप हुड्डा के अलावा असम में आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए कार्तिक आर्यन और सलमान खान जैसे बॉलीवुड सेलेब्स भी मदद के लिए आगे आए हैं। सलमान खान ने अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में बहुस्तरीय राहत अभियान शुरू किया है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन ने असम में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए अपने स्थानीय फैन क्लब के साथ हाथ मिलाया है। अभियान के पहले चरण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयार भोजन के पैकेट और अन्य जरूरी सामान बांटे जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की राशि दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस समय की गई इस बड़ी मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया था। This is the Shivsagar railway station, and a lot of affected families have come here from the surrounding areas, and Global 6 has been, they get dry ration and everything, but they have no stoves to cook. So we make the food and bring it to them, and we do this every day for last 7 days we've been doing it, yes. So this is actually very novel work to serve these flood affected people, and you also participate, and lots of people have gathered here to participate. Yes. Yes, I mean, humanity is above everything else. Wherever something goes wrong, I think the sick people are always there to help. I've been working with the same team of, which is now Global 6 for past many years, and on ground work that they do is amazing, and I would just urge everybody to contribute in whichever way they can to help people, not just here, wherever there is problem. As a human being, it is our duty to help our fellow human beings. So that's why we are here. So what you are also planning to go to some the flood affected areas to meet the affected people? Yes. The team has already done a lot of research on what they need. Mostly people need immediate relief in everyday amenities and food and things like place to sleep, a mattress, a tarpaulin, basic household toiletry items, so stuff. So we are making kits and we'll be distributing it to whoever needs them. And our team is also out there looking for people who have not received help yet. So we are trying to do that as well. So many people are come up to help this initiative, and across the country, many people have actually to come to Assam and to help these flood affected people. So do you want to appeal others also? See, you can help by being here and helping on ground like I am, or you can pray for people, or you can contribute to some organization which is working on ground directly related to the relief work. So there are many ways you can do it. It's not necessary that you come here, but definitely everybody should come forward and do something or the other, yes. आप ग्राउंड पर है, अभी आप फ्लड रिलीफ जो मटेरियल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह से पानी भरा हुआ है, जी। पूरा इलाके में पानी भरा हुआ जी। है, लाखों की तादाद के लोग अभी प्रभावित हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप? ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी होके जिसका भी कोई
हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल सिक की बोट आती है लोगों के घर पे तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। ये ना चलो चलो वहाँ चलो। हाँ तो जैसे अभी ऐसे लोग आ जाते हैं हेल्प के लिए, हमको देखना पड़ता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से। काफ़ी घर खाली भी हैं पर हमारे साथ ये लोकल लड़का है यहाँ पे जो सारे एरिया को जानता है ताकि हम अपनी बोट की नेविगेशन कर सकें। तो जैसे अभी ये दादा मिल गए तो इन्होंने बताया यहाँ पे लोग हैं, तो ऐसे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। तो असमीज लोग कमज़ोर नहीं हैं ये फॉर श्योर, बट बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेशन है और इसके लिए काफ़ी मदद लगेगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुए थे 18 और 19 जुलाई को जी जो नॉर्मल बारिश थे उससे 400% ज़्यादा बारिश हुए थे पास ही के नागालैंड के मोकोक्चुंग ऐसे डिस्ट्रिक्ट में। जी और यहाँ पर भी सराइडेओ शिवसागर में भी बहुत ज़्यादा बारिश जी हुई थी। जी तो पहले भी ऐसे बारिश होते थे लेकिन इस बार की जो डेवास्टेशन है उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। देखिए बारिश तो ज़रूर हुई है ज़्यादा, पर ये इस एरिया में कभी पहले इतना पानी नहीं आया। तो अलेजिडली जो मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे सुना है, लोगों से बात की है कि जो कोल माइनिंग हो रही है नागालैंड में और डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है तो उन माइंस में पानी भरने की वजह से जब वो माइन फटे तो एकदम से इतना पानी यहाँ पे आ गया। तो जो मेरे सुनने में आया है कि ये इसमें काफ़ी मैन मेड कंट्रीब्यूशन है। अगर वो माइंस ना होती और वहाँ पे इतने पेड़ ना कटते तो शायद इस एरिया में इतना पानी नहीं आता। तो ये तो गवर्नमेंट्स को, एक ही नहीं सभी गवर्नमेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि हम खुद कोल के लिए या किसी और अपनी ग्रीड के लिए हम लोग अपने को सिटीजन्स की, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की लाइफ कितनी बर्बाद कर रहे हैं। सो ये है, मैंने सुना है ऐसा हुआ है, बाकी वो तो एक्सपर्ट ही बताएंगे। तो आप अभी जा रहे हैं कुछ सामान दे चप्पू दे दे। को देने के लिए जी चलिए। तो यहाँ पर लोगों का भी बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हाँ ये तो आ गया, ऊपर ही है, रोड है तो हाँ ऊपर कर ले उन्होंने। हाँ 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 जी तो लोगों को भी बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है पिछले 2 सप्ताह। हाँ हाँ बहुत लोगों को, लोग कट ऑफ हैं। हम जैसे अभी बोट लेके यहाँ पे आए हैं, अभी तो पानी कम हो गया है पर फिर भी देखिए कितना है यहाँ पे। आपको यहाँ पे 2-4 फीट यहाँ होगा, पर जैसे ही आप इससे नीचे जाएंगे तो ऊपर ऊपर तक पानी है। तो लोगों के घर काफ़ी डूब गए हैं और जैसे ही जिनके घर से भी पानी रिसीड हुआ है उनके घर में स्लश बहुत हो गई है। इस खड़ा पानी होने की वजह से बीमारियां फैलने का बहुत डर है। तो इस पानी को ड्रेन करने का बहुत ही क्विक कोई रेमेडी देखना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आप क्या सरकार हो या नॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो उनको कोई आप कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए सरकार का तो काम ही है और मैं उसके बारे में बोलने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे सरकार क्या कर रही है या क्या करना चाहिए मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे असम में अपना कंट्रीब्यूशन करने आया हूँ और ये एक अटेंशन भी यहाँ पे लोगों की तरफ लेके आया हूँ कि यहाँ डेवस्टेशन बहुत है जो कि नेशनल मीडिया और नेशनल इशू नहीं बना है अब तक। तो मेरा तो यही है कि ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस डेवस्टेशन की खबर पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हेल्प कर सकें। आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप घर में अगर आसाम के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी करेंगे तो वो भी बहुत है, या फिर आप किसी ग्राउंड से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल सिक है जो जाके एक्चुअली में लोगों को हेल्प कर रही है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, या आप और तरीके देख सकते हैं यहाँ पे आप हेल्प करने के। पर हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। ओके, थैंक यू।